Hello students, this is your teacher Tanha ma'am, and today we are going to study chapter of class 12, third chapter of your textbook Flamingo, that is Deep Water. Deep Water is written by William Douglas, and in this chapter William Douglas has narrated an incident from his life showing us how he overcame his fear of water through perseverance and courage. He had to work very hard to overcome his deeply ingrained fear of water that he had got inflicted with at the YMCA pool after the tragic incident. The fear spoiled all his excursions with his friends. Whenever he accompanied his friends, whether to Cascades or Tieton or Warm Lake, the fear of water seized him. His legs got paralyzed and icy horror grabbed his heart. So, let us now see the chapter and understand its text. What is the story written by William Douglas? Deep water. Before we start explanation, let us understand some or get more details about William Douglas. William Douglas was born in the year 1898 and he died in the year 1980. He was born in Maine, Minnesota, and after graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics subjects, he spent 2 years teaching in high school in Yakima. Yakima is in Washington. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt, the then President of the United States, at Yale and became his advisor and friend. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in the year 1975 with a term lasting 36 years and remained as the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from his autobiography of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fears of water and thereby how he finally overcame it. Here we have to notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Along with the English word meaning and explanation, I will definitely give explanation in Hindi for your better understanding. So, it had happened. He described his own story. It had happened when I was 10 or 12 years old. यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि मैं जब करीबन 10-11 साल का था तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. वो कहते हैं आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग लर्न करूंगा और इसके लिए मैंने हमारे याकीमा में जो YMCA क्लब था उसमें एक पूल था. वहां पे मैं स्विमिंग सीखना शुरू किया. वो कहते हैं कि there was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. वो फर्दर कहते हैं कि वहाँ के जो रिवर फ्लो होती थी याकीमा रिवर, वो ही सिटी के नाम से ही रिवर का नाम है याकीमा. वो बहुत ही ट्रेचरस थी. ट्रेचरस मतलब प्रेजेंटिंग अनप्रेडिक्टेबल डेंजर्स. वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और अनप्रेडिक्टेबल डेंजर्स. कब क्या मुसीबत हो जाए पता नहीं. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और फर्दर कहते हैं कि मेरी मदर हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि भाई जो याकीमा रिवर है वो बहुत ही डेंजरस है और कैसे कई लोग उस रिवर में डूब चुके हैं. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. फर्दर वो कहते हैं कि मुझे YMCA पूल काफी सेफ लग रहा था. क्यों? क्योंकि YMCA का जो शैलो पार्ट था, वाटर का जो शैलो पार्ट था, वो सिर्फ 2 या 3 फीट ही डीप था और जो डीपेस्ट पार्ट था पूल का वो भी 9 फीट से ज्यादा डीप नहीं था. और
जो शैलो से डीप का जो ड्रॉप था, ड्रॉप मतलब जो डेप्थ थी, वो जिस तरह से डेप्थ कम हो रही थी, वो जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब होता है लिटिल बाय लिटिल। फर्दर वो कहते हैं कि जब मैंने तय किया मैं स्विमिंग सीखूंगा, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स क्या होती है? वो इन्फ्लेटेड विंग्स, इन्फ्लेटेड बलून की तरह होती है, प्लास्टिक मटेरियल की होती है। और जो बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू लर्नर्स होते हैं स्विमिंग, उनके दोनों ही हाथ में वो पहनाई जाती हैं और उसमें हवा भरी जाती है, जिससे कि वो लोग डूब ना जाए। एक तरह का हम कह सकते हैं कि इट इज वाटर विंग। आई हेटेड टू वॉक। फर्दर ऑथर कहते हैं कि आई हेटेड टू वॉक नेकेड फीट, नेकेड लेग। अच्छा, ये देखो सेकंड पेज पे यहाँ पे याकिमा रिवर का जो फ्लो है वो दिखाया गया है, और उसके बैंक पे जो सिटीज है या छोटे मोटे लेक है, वो सारी की डिटेल्स यहाँ पे मैप के रूप में आपको दी गई है, दैट यू कैन रेफर टू। ओके, तो जैसे कि उन्होंने आगे का कहते हैं कि आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। जो हमारे ऑथर थे, जब वो 10-11 साल के थे, तब वो बहुत ज़्यादा पतले थे। स्पेसिफिकली उनके जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे। और आप जब स्विमिंग करने जाते हो तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी कि स्विमिंग शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, जिससे आपके लेग्स दिखते हैं। तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको अपने लेग्स सबको दिखाने पड़ेंगे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड। लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे स्विमिंग सीखना ही था, इसलिए मैंने अपने वो जो शेम था या प्राइड था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसको कंट्रोल किया और मैंने शॉर्ट्स पहने और मैं पूल की तरफ निकल पड़ा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. बोलता है पहले से ही मुझमें जब भी पानी में होता हूँ, मुझे पानी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। अवर्जन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, उसका भी वो एक्सप्लेनेशन फर्दर हमें देते हैं। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. वो बोलते हैं कि मैं जब बहुत छोटा था, 3 या 4 साल का था, तब मेरे फादर मुझे हम लोगों को कैलिफोर्निया ले गए थे और वहाँ पे बीच पे ले गए थे। उस वक्त में और मेरे फादर वो पानी में वो बीच पे खड़े थे, वेव्स में हम खड़े थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है वेव्स। हम दोनों वेव्स में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। वो बोलते हैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं अपने पापा के लेग्स को फिट पकड़ के खड़ा था, लेकिन उतने में बहुत बड़ी वेव आई और उसने मुझे नीचे पानी में गिरा दिया और पूरी वेव मेरे ऊपर से होके चली गई। इस वजह से मैं पूरा पानी में डूब गया। मैं और ऐसा लगा जैसे मेरी ब्रेथ मेरी सांस रुक गई। I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of waves. फादर तो उस पर हंस पड़े, उनको उसमें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत छोटा था और यही इंसिडेंट ने मेरे दिल में एक बहुत बड़ा डर, एक खौफनाक डर पैदा कर दिया। किससे? वेव्स से। दैट ओवरपावरिंग फोर्स, ओवरपावरिंग मीन्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ वेव्स ने मेरे दिल में एक डर बिठा दिया। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. वो फर्दर कहते हैं कि जब मैं YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गया, फिर से जो मेरी बचपन की मेमोरीज थी, जो कैलिफोर्निया के बीच पे हुआ था, वो सारी मेमोरीज वापस आ गई। रिवाइव्ड का मतलब है रिस्टोर्ड, रिगेन्ड। और वो मेरे दिमाग में मेरे वो जो चाइल्डिश फियर्स थे, वो बचपन की जो फियर्स थे, वो फिर से मेरे दिमाग में स्टर्ड हो गए। स्टर्ड मतलब राइज हो गए, अरोज हो गए। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेटर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे इतना डरना नहीं चाहिए, और उन्होंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। I paddled with my water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. वो पानी में, शैलो पानी में गए। उन्होंने दूसरे बॉयज को वहाँ पे देखा, अपनी वाटर विंग पहन के वो वहाँ पे गए, दूसरे बॉयज को देखा, उनको कॉपी करने लगे और वो पानी में पेडलिंग करने लगे। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened.
वो कह रहे कि मैंने 2-3 बार अलग अलग दिनों पे ये किया कि जब दूसरे बच्चे होते थे पानी में, मैं खुद भी पानी में जाता शैलो वाटर में, और फिर पानी में जाकर मैं पैडलिंग करता और अपना जो डर था पानी का वो उसको मैं भगाता था। और ग्रेजुअली मुझे पानी में मैं रिलैक्स फील करने लगा। और तभी मेरे साथ एक मिस एडवेंचर, एक ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी हुई? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन वो YMCA के पूल में गए, लेकिन उस दिन वहां पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, क्योंकि पानी में कोई था ही नहीं तो वाटर भी एकदम स्टिल था। और उसी वजह से द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। और पानी में कोई मूवमेंट ना होने की वजह से उन्होंने देखा कि पानी एकदम क्लियर था, और जो पूल के बॉटम में व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए थे वो उनको साफ साफ दिख रहे थे, जैसे कि आप बाथटब को ही देख लो। I was timid about going alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. वो फर्दर कहते हैं कि वहाँ पे अंदर मुझे अकेले पानी में जाने से डर लगता था। मेरे पास उतना, मैं टिमिड था। टिमिड का मतलब होता है लैक ऑफ करेज। मेरे पास इतनी करेज नहीं थी कि मैं अकेला पानी में जाऊँ, इसलिए मैं वहाँ पूल की साइड पे बैठ गया और मैं दूसरे बॉयज का वेट करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. वो कहते हैं कि बस मैं वहाँ पे पूल पे दूसरों का इंतजार करते हुए बैठा ही था, उतने में एक बहुत बड़ा सा लड़का, बिग ब्रूजर। ब्रूजर का मतलब होता है स्ट्रांगली बिल्ट। स्ट्रांगली बिल्ट, एक बड़ा सा लड़का, शायद 18 साल का होगा, जो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट था, जिसके मसल स्ट्रांगली बिल्ट थे, वो वहाँ पे आया। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physique specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वो उसको देख के आप लगे कि वो टॉल हैंडसम था। एट द सेम टाइम उसके लेग्स पे और उसके आर्म्स पे मसल्स थे, फूले हुए मसल्स थे। मतलब he might be doing exercise and he was well built. He shouted at me and said, "Hi, skinny." उसने मुझे चिढ़ाया और कहा कि कैसे हो स्कीनी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑथर वॉज वेरी थिन। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि कैसा रहेगा मैं यदि तुम्हें पानी में फेंक दूँ, तो पानी में धक्का मार के फेंक दूँ तो। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और यही कह के उसने मुझे उठाया अपने हाथों में और फिर मुझे उठा के जो साइड डीप वाटर था उस साइड उसने मुझे पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. Further वो कहते कि उसने जैसे ही मुझे डीप पानी में डाला, मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में गिरा और धीरे धीरे करके मैं उसमें पानी पीगा, खूब सारा पानी पी गया और मैं वाटर के बॉटम में जाने लगा। I was frightened. वो उतने डर गए थे कि ना ही वो अपने हाथ को वेव कर पाए और ना ही अपने पैर से पैडल कर पाए। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। वो डर तो गए थे लेकिन इतना नहीं डरे थे कि वो अपना दिमाग ना अप्लाई कर सके, अपना दिमाग ना चला सके। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. उन्होंने तय किया था, ओके, जैसे ही मैं पानी के नीचे पहुंचूंगा और पानी में डीप में बॉटम में पहुंचूंगा तो वहाँ पे जो टाइल है उसको मैं पैर से धक्का मारूंगा और अपने आप को ऊपर हिट करके ऊपर जंप करूंगा, अपने आप को ऊपर खींचूंगा। और जब मैं ऊपर खींच के ऊपर सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे आ जाऊंगा तो मैं फ्लैट लाई करूंगा और मैं पैडल करके पूल के एज तक, पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा स्विमिंग करके। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन। वो फर्दर कहते हैं मैंने ऐसा सोचा था कि मैं फटाफट नीचे बॉटम तक पहुंचूंगा, मेरे फीट को बॉटम हिट करेगी और मैं ऊपर आ जाऊंगा जंप करके, लेकिन ऐसा लगा कि नीचे जाने में बहुत देर लगी। इट टुक लॉन्ग टाइम टू रीच द बॉटम। Those 9 feet were more like 90। उनको उस वक्त ऐसा लगा कि वो 9 फीट उनको 90 फीट जितना लंबा लगा। Before I touched bottom, my lungs were ready to burst। वो कहते मैं इतना सारा पानी सलो कर गया था, इतना सारा पानी पी गया था कि नीचे पहुंचते पहुंचते तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे लंग्स फट जाएंगे। But
When my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे ही मेरे पैर को, मेरे फीट को बॉटम टच हुआ, मैंने तुरंत ही अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा की, एंड जो पहले सोचा था वही उसी तरह से मैंने अपने फीट से बॉटम को पुश किया और ऊपर जंप किया. स्प्रिंग मतलब जंप, मैंने ऊपर की तरफ जंप किया. I imagined I would walk to the surface like a cork. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा और ऊपर की तरफ जंप करूंगा, तुरंत ही मैं बाहर आ जाऊंगा एक कॉर्क की तरह. बॉब का मतलब है बाउंस, बाउंस टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. अभी कॉर्क क्या है? कॉर्क मतलब वो सोडा वगैरह की जो बॉटल होती है, उस पर जो ढक्कन होता है जिसको हम खोलते हैं, उसमें आवाज आती है, एकदम उछलता है उसका ढक्कन, राइट? तो उसको बोलते हैं कॉर्क. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज. वो कहते हैं लेकिन मैं ऊपर फटाफट नहीं आया, बहुत स्लोली मैं ऊपर जा रहा था, और मैंने जब अपनी आंखें ओपन की, आई सॉ नथिंग बट वाटर. जब मैंने आंखें ओपन की तो मुझे स्विमिंग पूल और मैं वाटर के बाहर का जो सीन था वो देखने को नहीं मिला. मेरे चारों तरफ क्या था? वाटर ही वाटर था. मैं अभी भी पानी में था. और वाटर कैसा था? वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. और जो वाटर था वो व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा था, वाटर डर्टी येलो कलर का, स्लाइटली येलो कलर का दिख रहा था. टिंज का मतलब है कलर. आई ग्रू पैनिकी. वो एकदम पैनिक हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कुछ और हुआ कुछ, क्योंकि ऊपर जाने में बहुत देर लग रही थी. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. उन्होंने जो स्विमिंग पूल होता है ना, वहाँ पे वो लोग रस्सी भी अंदर रखते थे, शायद कोई डूबने लगे तो रस्सी पकड़ के बाहर आ सके. यहाँ पे जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, वहाँ पे उसकी एजिस पे सीढ़ियाँ, लैडर्स भी लगाई होती है. तो वो जो वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया कि यदि रोप मेरे हाथ में, कोई रस्सी मेरे हाथ में आ जाए तो उसको भी खींच के मैं किनारे पे पहुंच सकता हूँ. लेकिन उन्होंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ उनके हाथ में वाटर ही आया. क्लच्ड मीन्स कॉट. ग्रैब का मतलब भी कॉट ही होता है, कैच होता है. आई वॉज सफोकेटिंग. सफोकेटिंग मीन्स आई वॉज अनेबल टू ब्रीथ. वो सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. Further वो कहते हैं कि मैंने शाउट करने की कोशिश की, लेकिन कोई साउंड नहीं आ पाया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली. और फिर उस समय मैंने देखा कि मैं पानी के ऊपर आ रहा हूँ, मेरी आंखें हैं वो पानी के बाहर आई, मेरा नोज है वो भी पानी के बाहर आया, लेकिन मैं उतना ऊपर नहीं उठ पाया कि मैं अपना मुंह, अपना माउथ भी पानी के बाहर निकाल सकूं. जैसे ही मेरी आंखें और नोज पानी के बाहर आए, आई फ्लैलेड. फ्लैलेड का मतलब होता है टू वेव हिज हैंड. वो कहते हैं ना कि स्विम करने की कोशिश, स्ट्राइक और लैश आउट विगरसली एट द सरफेस. उन्होंने वहां पे बाहर आने की कोशिश की, बट फिर से उन्होंने वो स्वैलोड एंड चॉक. लेकिन वो पानी, वो ऊपर नहीं आ पाए और वो फिर से पानी पी गए और उनका गला चॉक हो गया. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. मैंने अपने लेग्स को भी ऊपर लाने की, लेग से पैडल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मेरे लेग्स हैं वो जरा भी काम नहीं कर रहे हैं, वो स्टिल हो गए हैं, वो स्टिफ हो गए हैं. They were unable to move. वो पूरे पैरालाइज्ड हो गए हैं, मतलब कि I don't have any control over my legs. वो रिजिड हो गए हैं, वो हार्ड हो गए हैं, वो कोई भी मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे. A great force was pulling me under. और मैंने देखा कि फिर से कोई फोर्स है जो मुझे पानी के अंदर खींच रहा है. I screamed. मैंने शाउट किया बचाओ बचाओ, but only the water heard me, क्योंकि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और फिर से मैं पानी में अंदर जाने लगा, पूल में, पानी में बॉटम की तरफ मैं जाने लगा, नीचे में जाने लगा. I struck at the water as I went down. फिर से जब मैं पानी के नीचे जा रहा था तो जब मैं पानी में नीचे जा रहा था, मैं पानी को अपने हाथों से मार रहा था, वहां पे मैं अपने हैंड्स को वेव कर रहा था. Expanding.
एक्सपेंडिंग का मतलब होता है यूजिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट एंड इरिजिस्टिबल फोर्स। कि जैसे कि रात को हमें कोई बहुत बुरा सपना आता है और सपने में जैसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सारी ताकत लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह से मैं भी पानी और डूबना मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा था, एक खराब सपने जैसा था। वहां पे भी मैं फाइट कर रहा था। इरेजिस्टिबल फोर्स का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल फोर्स के सामने मैं अपनी पूरी ताकत लगा के फाइट कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और ये करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस फूल गई है, मेरी पूरी ताकत चली गई है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। माई लंग्स एक, माई हेड थ्रोब, आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे अपने लंग्स में पेन होने लगा। मेरा जो हेड है वो थ्रोब करने लगा मतलब पल्सेट का मतलब बहुत ही फास्ट, जैसे बीटिंग हो रहा था हार्ट में और मेरे हेड में। आई वॉज गेटिंग डीज, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. लेकिन उतने में ही मुझे एक चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे क्या करना है। मैं अभी पानी में नीचे जा रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे जो फीट है वो पूल के बॉटम को टच करेंगे, फिर से एक बार मुझे इसको पुश करना है, अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करना है, जंप करवाना है अपनी बॉडी को, और फिर एक कॉर्क की तरफ फेस पे आना है। फिर मुझे सीधे होकर पानी पे अपने हाथ और पैर को हिला के स्विम करना है और मुझे पूल के एज पे पहुंचना है और सेव करना है अपने आप को। I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. वो बोलते हैं फर्दर कि मैं नीचे ही बहुत स्लोली पानी के अंदर जा ही रहा था, जैसे कि कभी ये पानी का एंड ही नहीं है, इसका बॉटम ही नहीं है। और उनकी आंखें खुली थी, और खुली थी आंखें, लेकिन पानी में येलोइश कलर का ग्लो था, लेकिन ग्लो इतना डार्क था कि कोई उसके अलावा, पानी के अलावा उनको कुछ और दिख नहीं रहा था अंदर। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उतने में ही शेयर मतलब होता है कंप्लीट, एब्सोल्यूट। स्टार्क टेरर मतलब एक्सट्रीम फियर। ये स्टार्क टेरर उस टर्म के लिए यूज होता है कि आपको इतनी हद तक आप डर जाओ कि वो डर का एहसास सिर्फ जिसने वो डर महसूस किया हो, जिसने वो डर को फील किया हो, उसको ही पता चलता है। जैसे कि मैंने कभी भी ड्राउनिंग एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं किया हो, तो आई विल नेवर अंडरस्टैंड द फियर ऑफ बीइंग ड्राउन एंड फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्क टेरर मतलब एक्सट्रीम फियर seized him, caught him. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. वो ऐसा डर है जो जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया वो कभी भी उसको समझ नहीं सकता। I was shrieking under the water. I was paralyzed under water. Stiff, rigid with fear. वो कहते हैं कि मैं अंदर पानी के अंदर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और मैं पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। पैरालाइज्ड मतलब मेरे कोई भी बॉडी पार्ट पे मेरा कंट्रोल नहीं था, ना ही मैं अपने हाथ हिला सकता था, ना ही मैं अपने पैर हिला सकता था। मेरा बॉडी पूरा स्टिफ, रिजिड हो गया था डर की वजह से। Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। सिर्फ मेरा हार्ट में बीटिंग हो रहा था और मेरे हेड में पाउंडिंग हो रहा था। वो दो ही ऑर्गन मेरे चल रहे थे और वही शायद बता रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। अदरवाइज आई वॉज हाफ डेड। And then in the midst of the terror came a touch of reason. Further वो कहते हैं कि and then in the midst of the terror came a touch of reason.
फर्दर वो कहते हैं कि इतने में ही जब ये पूरा टेरर था, जो पूरा डर था, उसके बीच में ही तो मुझे कुछ फील हुआ। क्या फील हुआ? उनके फीट को बॉटम फील हुई, बॉटम ऑफ द पॉन्ड। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम एट द लास्ट। आई फेल्ट द टाइल अंडर मी, माई टोज रीच आउट as if to grab them. I jumped with everything I had. और उस वक्त भी मेरे फीट ने जैसे ही बॉटम टच किया, मैंने फिर से जो प्लान किया उसी तरह से मैंने बॉटम को हिट किया, अपने आप को ऊपर की तरफ जंप करवाया। जितना भी मेरे पास ताकत बची थी, जितना भी फोर्स स्ट्रेंथ बची थी उससे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। आगे जो हुआ था एक बार, उसी तरह से इस बार भी वही हुआ कि उन्होंने जंप तो किया, लेकिन जंप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं प्रूव हुआ, जंप से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक फॉर रोप, लैडर्स, वाटर विंग। उन्होंने आजू बाजू इस बार देखने की कोशिश की कि शायद वो रोप मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूं, या लैडर मिल जाए, या वाटर विंग जो उन्होंने पहनी थी जो निकल गई थी वो मिल जाए, तो शायद मैं बच जाऊं। नथिंग बट वाटर। उन्होंने आजू बाजू देखा, लेकिन उनको सिर्फ वाटर के अलावा कुछ भी नहीं देखा। वाटर कैसा था? अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. और अब जैसे वो ऊपर गए और सक्सेसफुल नहीं रहे पानी से बाहर आने में, तो ज्यादा वो डर गए, जैसे कि किसी ने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। लिटरली वो डर की वजह से अंदर से शुक करने लगे, अंदर से पूरे वो हिल गए। लिटरली वो ट्रम्बल करने लगे विद द फियर। My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing helped. और अब वो अपने बॉडी का कोई पार्ट हिला नहीं पाते, ना ही अपने हाथ हिला पा रहे थे, ना ही अपने लेग हिला पा रहे थे, ना ही वो चीख रहे थे, ना ही लिख पा रहे थे, ना ही अपनी मम्मी को बुला रहे थे। और स्पेसिफिकली जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं ना, तो उस वक्त हमें हमेशा अपनी मदर याद आती। तो वो बहुत उन्होंने चीखने चिल्लाने का, मदर को बुलाने का ट्राई किया, बट एवरीथिंग फेल्ड। And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. ऑफकोर्स वो ऊपर, जब उन्होंने जंप किया तो ऊपर आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन इतना स्लोली ऊपर आए थे, उनको लगा शायद वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन उतने में ही अचानक उनको उनकी आंखों को लाइट दिखी, बाहर का जो लाइट होता है, वाटर का येलो लाइट नहीं, बाहर का जो ब्राइट लाइट होता है वो दिखा। और वो जो ऑफुल मतलब ऑफुल अनप्लेजेंट येलो वाटर से बाहर आए थे। एटलीस्ट उनकी आंखें और उनका नोज बाहर आ चुका था पानी से, जैसे कि पहले हुआ था वो। लेकिन इस बार भी वो अनसक्सेसफुल रहे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर से मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगा। मैं अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने लेग्स को ऊपर नहीं ला पाया। I sucked for air and got water. जैसे ही मैं एयर सक करने की कोशिश करता, जैसे मैं ब्रीथ करने की कोशिश करता था, तो मुझे सिर्फ पानी ही मिलता था। एंड द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। और अब क्या हुआ, जब वो नीचे जा रहे थे, तब जो येलोइश लाइट उनको आजू बाजू पानी में दिखती थी, वो भी उनको दिखनी कम हो गई। मतलब कि अब तक उनका बॉडी ने उनका साथ छोड़ दिया था। मतलब कि ना ही उनके हाथ चल रहे थे, ना ही पैर चल रही थी, लेकिन उनका दिमाग चल रहा था। लेकिन अब कहीं लग रहा था कि दिमाग ने भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। Then all efforts ceased, all efforts stopped. मेरे दिमाग ने सारे एफर्ट्स करना छोड़ दिया। आई रिलैक्स, और मुझे रिलैक्स फील हुआ। क्योंकि जब आप बहुत सारा सोचते हो, कुछ ट्राई करते हो, दिमाग जब बहुत सोचता है तब कुछ स्ट्रेस फील होता है। लेकिन जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, या फिर जब दिमाग कम काम करता है, तो आप रिलैक्स फील करते हो। जैसे कि रात को हम सो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को सोचना बंद करवाते हैं। हम बोलते हैं दिमाग को हम दिमाग बंद करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स दिमाग कभी बंद नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं और हम सो पाते हैं। तो इसी तरह से उनका दिमाग शायद अब रिलैक्स होना चाहता था, बहुत थक चुका था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प,
लिम्प मीन्स अनेबल टू मूव, पैरालाइज्ड बोलते हैं या लाइफलेस बोलते हैं, कि मेरे लेग्स थे वो पूरे लिम्प हो चुके थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में, मेरी आंखों से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, ना ही वाटर देख पा रहा था, ना ही येलोइश कलर देख पा रहा था, पूरा तरह अंधेरा मेरी आंखों के सामने छा गया था। इट वाइप्ड आउट द फियर, और वहां पे कोई फियर नहीं था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरे मुंह से फियर चला गया, टेरर चला गया। क्यों? क्योंकि अब दिमाग कुछ ऊपर ही नहीं कर रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, एकदम पीस था, एकदम स्टिलनेस। देयर वॉज नो मूवमेंट, नो एफर्ट, नथिंग, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज नाइस, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत नाइस प्लेस है, बहुत नाइस जगह है, नाइस एक्सपीरियंस है। To be drowsy means to become unconscious, to become sleepy, to go to sleep. No need to jump. अब मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, ना ही मुझे पानी से डरना है, ना ही मुझे मरने से डरना है। Too tired to jump. It's nice to be carried gently. और उनको ऐसा लगने लगा कि बस अब मेरी मौत, मेरी डेथ बहुत ही नजदीक है, और बहुत अच्छी बात है कि आराम से मैं विदाउट एनी पेन आई विल डाई, टू फ्लोट अलोंग इन दिस स्पेस। और जब I don't know whether you people have experienced the unconsciousness or not, लेकिन यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो और आपको अनकॉन्शियस किया गया हो, एनेस्थेशिया दिया हो, जब आप एनेस्थेशिया में जाते हैं, मतलब कि अनकॉन्शियस होते हैं, या एनेस्थेशिया से जब आप बाहर आते हैं, मतलब यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, उस वक्त आप काफी कुछ चीजें फील नहीं कर पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। आपका जो बॉडी है ना, वो वेटलेस हो जाता है, एंड यू फील सो गुड बिकॉज योर माइंड इज नॉट वर्किंग कंप्लीटली एट दैट टाइम, एंड दैट्स व्हाई यू फील गुड एट दैट टाइम, यू फील रिलैक्स एट दैट टाइम। उनको ऐसा लगा कि वो जैसे कि स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। फिर उनके आजू बाजू किसी ने टेंडर आर्म्स, सॉफ्ट आर्म्स उनको कैरी कर रही है, और कि वो सॉफ्ट आर्म्स जो मदर की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उनको ऐसा फील हुआ कि बस अब मुझे सो जाना है, हमेशा के लिए सो जाना है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियसनेस उन्होंने छोड़ दी थी, और वो अनकॉन्शियस होने लगे थे। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा उनको लगा कि उनकी लाइफ विल कम टू एन एंड वेरी सुन, और वो बेहोश हो गए। फिर जब उनको होश आया, the next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. उनको जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पूल के बाहर किसी ने उनको निकाला हुआ था, और वो पूल के बाजू में वहां पे स्टमक के बल, पेट के बल सोए हुए थे, और वो अपने पेट में से पानी निकाल रहे थे। He was vomiting. The chap that threw me in was sane, but I was only fooling. और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उनके आजू-बाजू इकट्ठा हो गए हैं, और उसमें से एक इंसान है, वो जो लड़का था जिसने उनको पूल में डाला था, उससे बात कर रहा था, और वो जो लड़का जिसने पूल में उनको डाला था, वो 18 इयर्स का बॉय, तो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग, आई वाज जस्ट टीजिंग इट, मेरा कोई इरादा नहीं था इसको मारने का। Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker. उतने में सुना कि किसी ने वो जो 18 years का वो यंगस्टर था, उसको डांट रहे थे कि भाई तुम्हारी वजह से ये बच्चा मर जाता ना, वो ठीक है, चलो इसको लेके लॉकर रूम में चलते हैं। फिर ऑथर को जैसे ही होश आया, उनको लॉकर रूम में ले गए, वहां पे उन्होंने थोड़े घंटे बिताए जिससे कि वो फ्रेश हो जाए। एंड आफ्टर सेवरल आवर्स ही वॉकड होम। आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, वो बोलते हैं कि मैं इतना वीक हो गया था मेरे ये ट्रेजिक एक्सपीरियंस की वजह से, लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे, मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और वो जब घर पहुंचे तो जब वो सो गए अपने बेड पे लेट गए, तो लिटरली पूरा उनका बॉडी कांप रहा था, और वो रो रहे थे। आई कुडंट ईट दैट नाइट, वो इतने डर गए थे कि वो रात को खाना तक नहीं खा पाए। For days a haunting fear was in my heart,
The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. वो फर्दर कहते हैं कि बहुत दिनों तक ये जो फियर था, वो जो डूबने का एक्सपीरियंस था, वो मेरे आंखों के सामने आता था, मेरे हार्ट में वो फील होता था, मैं घड़ी घड़ी डर जाता था। और उसके बाद ऐसा हालत हो गई, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा वीक थे, जैसे मैंने बोला वो खुद बहुत स्कीन थे। तो फिर ये एक्सपीरियंस के बाद यदि वो थोड़ा सा भी एक्सर्शन कर लें, मतलब थोड़ा सा भी चल ले या थोड़ी एक्सरसाइज कर ले या भाग ले, तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते थे, उनका बॉडी उनका साथ नहीं देता था, उनके जो नीज थे वो शेक करने लगते थे और उनको अपनी स्टमक में पेन होने लगता था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब बोलते कि ये एक्सपीरियंस के बाद में फिर कभी भी पूल में नहीं गया, मैंने कभी भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा मैं पानी के नज़दीक, वाटर बॉडीज के नज़दीक जाना अवॉइड किया। A few years later, when I came to know the waters of Cascade, I wanted to go into them. थोड़े सालों बाद मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चला कि भाई नज़दीक में ही एक वाटरफॉल है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और वाटरफॉल के फोटोग्राफ देखकर, उसके बारे में जानकर उनको मन हुआ कि चलो मैं भी वाटरफॉल में जाता हूँ। And whenever I did, whether I was wading the Siachen or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. वो कहते हैं कि जब भी मैंने वाटर बॉडीज में बड़े होके भी, मैच्योर होके भी, मैंने जब भी कोई भी वाटर बॉडी में जाने की कोशिश की, चाहे वो रिवर होती थी, चाहे वो लेक होता था, हमेशा वो जो मेरा डर था वो वापस आ जाता था। एंड it won't allow me to enjoy my trip in water, to enjoy any kind of adventure in the water. It would take uh, it would take possession of me completely. My leg would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और जब भी मैं पानी में जाता था, अचानक से वो डर, मुझे वो डर फील होता था। मेरा बॉडी है, मेरे लेग्स वो पैरालाइज्ड हो जाते थे और एकदम आइसी हॉरर मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता था, वो पकड़ लेता था मेरे हार्ट को और मैं इतना डर जाता था कि फर्दर मेरे में पानी में जाने की हिम्मत नहीं रहती थी, मैं पानी से भाग जाता था दूर। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर रोल्ड बाय। हैंडीकैप का मतलब होता है a circumstance that makes progress difficult. A circumstance that makes progress difficult. तो ये जो मेरा circumstances था जिस पर मैं ओवरकम नहीं कर पाता था, वो मेरे साथ बहुत साल रहा। कई बार मेरे फ्रेंड्स हैं, वो छोटी सी बोट में, कैनोज का मतलब होता है स्मॉल बोट, कई बार मेरे फ्रेंड्स हैं वो छोटी बोट में मेन लेक में फिशिंग के लिए जाते थे और वहाँ पे वो जो लैंडलॉक सैल्मन है, लैंडलॉक सैल्मन मतलब फ्रेश वाटर फिश है, उसकी फिशिंग के लिए जाते थे कई बार मेरे फ्रेंड्स। या कभी कभी मेरे फ्रेंड्स हैं वो बास भी एक तरह की फिश है, वो न्यू हैम्पशायर में पाई जाती है, वहाँ के लेक में पाई जाती हैं, वहाँ फिशिंग के लिए जाते थे। या कभी कभी मेरे फ्रेंड्स है वो ट्राउट भी फिश का ही एक स्पीसीज है, उसके फिशिंग के लिए वो लोग जाते थे। या मेटलियस में जाते थे, मतलब वो मेरे फ्रेंड्स थे वो ट्राउट की फिशिंग में जाते थे, डिशूट जाते थे, या मेटलियस इन ओरेगन जाते थे वो फिशिंग सैल्मन, और या फिर फिशिंग जो सैल्मन फिश थी उसके फिशिंग के लिए कोलंबिया जाते थे, या बम्पिंगली जाते थे इन द कैस्केड। wherever I went, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी प्लेसेस, और there were so many beautiful lakes and rivers around the Washington, बट ये सारी प्लेस पर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे फिशिंग के लिए या बोटिंग के लिए या स्विमिंग के लिए, क्या होता था, The haunting fear of the water followed me. जो फियर था मेरा, जो हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहता था पानी का, वो हमेशा मुझे वहाँ पे परेशान करता था। It ruined my fishing trip. वो मेरी फिशिंग ट्रिप को रूइन कर देता, क्योंकि मैं पानी को देख के डर जाता था। सारे फ्रेंड्स एंजॉय करते थे फिशिंग और मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। Deprived me of the joy of canoeing. इसकी वजह से मेरा जो खुशी मुझे मिलती कैनोइंग करके, मतलब छोटी सी बोट में घूमने में,
या फिर खुद बोटिंग करने में या खुद स्विमिंग रिवर्स और लेक में करने में, वो सारी खुशी मुझसे छीन गई थी मेरे एक डर की वजह से, पानी के डर की वजह से। I used every way I knew to overcome this fear. जो तरीके हो सकते थे ये डर को भगाने के लिए, मैंने सारे आजमा के देखे थे, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swimming. मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये डर मेरे से जाता ही नहीं था। फिर एक अक्टूबर में मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए इस बार मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा और मैं अपने डर को भगा के ही रहूंगा। इसलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर हायर किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week an hour each day. और फिर उन्होंने वो तय किया कि मैं पूल में जाऊंगा और 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन वो पूल में जाने लगे, रोज 1-1 घंटा, 1 आवर के लिए वो जाने लगे। इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा, पहले उन्होंने इंस्ट्रक्टर को अपने दर्द के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने प्रिकॉशंस ले लिया था। क्या प्रिकॉशन लिया था? द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट ran on an overhead cable. इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था कि डगलस के आजू बाजू एक बेल्ट लगाया था और वो बेल्ट को एक रोप से लगा के वो जो रोप थी वहां पे स्विमिंग पूल के पास एक पुली लगाया। पुली होता है जिससे हम कोई हैवी चीज को खींच सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जिसको बोल सकते हैं। तो पुली लगाया था और पुली जो था वो अटैच था एक ओवरहेड केबल से, ओवरहेड रोप को। और वो रोप का दूसरा जो सिरा था, उसका दूसरा जो एंड था वो इंस्ट्रक्टर के उन्हें अपने से बांधा हुआ था। और इस तरह से यदि शायद ऐसा हो जाए, ये क्यों प्रिपरेशन की थी, यदि ऐसा हो जाए कि जो ऑथर है वो डूबने लगे तो इंस्ट्रक्टर अपने अपने साइड के सिरे से पुली की मदद से ऑथर को खींच के बाहर निकाल सके। तो वो बोलते हैं वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मतलब कि हम लोग पानी में तैरते थे और पानी में लेंस लगाते थे। लेंस मतलब पूल के इस साइड से उस साइड और उस साइड से इस साइड आते थे। We went back and forth. Forth मतलब forward. Back and forth across the pool. Hour after hour, day after day, week after week. मतलब ये एक्सरसाइज उन्होंने बहुत वीक तक कंटिन्यू रखी। On each trip across the pool, a bit of panic seized me. जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, फिर भी ऑथर कहते हैं कि जब भी मैं पानी में जाता था और जब भी मैं स्विमिंग करना इधर से उधर लेंथ लगाता था स्विमिंग पूल की, हर बार मुझे एकदम से डर लग जाता था, बहुत ज्यादा डर लग जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of old terror returned and my legs froze. वो बोलते कि इंस्ट्रक्टर है वो रोप जो है थोड़े रिलैक्स करता था जिससे मैं आगे पीछे जा सकूं, और जब भी ऐसा होता था फिर से वो जो मेरा पुराना डर था वो आ जाता था मेरे में और मेरे लेग्स है वो मूवमेंट वो फ्रीज हो जाते थे, मतलब कि मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। It was 3 months before the tension began to slack. मतलब 3 महीने तक उन्होंने इसी तरह से प्रैक्टिस की, तब जाके उनका जो डर था वो कम होने लगा। तो slack means to reduce. Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उन्होंने मुझे वो जो इनहेल और एक्सेल की एक्सरसाइज होती है पानी में होता है तो उसको कैसे करते हैं वो सिखाई। To raise my nose and inhale, कि कैसे आप अपना नोज पानी के अंदर से निकाल के रेज कर सकते हो और कैसे सांस अंदर भर सकते हो। I repeat the exercise 100 of times. और उन्होंने बोला कि मुझे ये डर को भगाना था, इस वजह से मैंने ये एक्सरसाइज को 100 of times मैंने उसको रिपीट किया, अच्छे से प्रैक्टिस किया। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. और उन्होंने कभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो अपने अंदर जो डर था, शेड मतलब रिमूव, आई शेड द पार्ट, आई रिमूव द पार्ट ऑफ द पैनिक दैट हैड सीज्ड मी, हैड कॉट मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा डर अपने दिमाग से निकाल दिया। कब, कौन सा डर? जब मेरा सिर पानी के अंदर हो, उसको जो डर लगता था उसको मैंने धीरे धीरे रिमूव किया।
नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। फिर उन्होंने क्या मुझे प्रैक्टिस करवाई कि वो रस्सी से मुझे पूल की साइड पे पकड़ के रखते थे और फिर मुझे किकिंग सिखाई, लेग से मुझे कैसे किक करना है पानी को। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एक्चुअली किकिंग की एक्सरसाइज एक वीक से ज़्यादा नहीं होती, एक वीक में लोग किकिंग सीख जाते हैं स्विमिंग में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कई हफ्तों तक सिर्फ किकिंग की प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मुझे इतना डर पानी से लगा कि मेरे लेग फ्रीज हो गए, वो हिलते ही नहीं थे। और ग्रेजुअली फिर मेरा डर कम हुआ क्योंकि मैं खुद, मेरा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे था, मैं खुद मेरी बॉडी रोप से बंधी हुई थी। तो मैंने अपने आप को समझाया, अपने डर को रिलैक्स किया, कम किया एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। फाइनली उन्होंने अपने लेग्स को रिलैक्स करके उसको ऑर्डर देना शुरू किया, उसको कमांड देना शुरू किया। Thus, piece by piece, he built a swimmer. और धीरे धीरे करके उनका इंस्ट्रक्टर जो एक्सपर्ट था, एक एक करके उन्होंने उनके डर हटाए, उनको स्विमिंग की टेक्निक सिखाई और उनको एक अच्छा स्विमर बना दिया। When he had perfected each piece, he put them all together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim, dive off, and swim the length of the pool crawl stroke." और एक एक करके हर एक चीज को परफेक्ट करते गए, हर एक चीज में से मेरा डर निकालते गए और फिर अप्रैल तक मैं स्विमिंग सीख गया और मेरा डर काफी हद तक चला गया था। उस वक्त मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि अब मैं स्विम कर सकता हूँ, इवन मैं ऊपर से जंप करके डाइव कर सकता हूँ, मैं स्विम लेंथ मतलब पूल के एक कोने से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता हूँ और इवन मैं क्राउल स्ट्रोक क्या होता है, स्विमिंग की एक तकनीक होती है, वो भी मैं अब कर सकता हूँ। आई डिड। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। और मैं वहाँ पे सब स्विमिंग अच्छे से कर पाया और ये करके मेरे इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। उन्होंने मुझे अच्छे से मेरे डर भी भगा दिया और अच्छे से मुझे स्विमिंग भी सिखा दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश। मेरे इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, लेकिन अभी मेरा खुद का काम खत्म नहीं हुआ था। क्यों? आई स्टिल वंडर्ड if I would be terror stricken when I was alone in the pool. अभी भी मुझे से मैं सोचता था, डर लगता कब तक तो मैंने इंस्ट्रक्टर के साथ रहकर स्विमिंग किया है, स्विमिंग सीखा है, तो शायद मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन यदि मैं अकेला स्विमिंग करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा, क्या फिर से वो डर नहीं आ जाएगा मुझ में। आई ट्राइड इट। और एक दिन मैंने अकेले स्विमिंग पूल में जाके देखा जब कोई नहीं था। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। और मैंने खुद लेंथ लगाई। जब मुझे पूरी तरह स्विमिंग आ गया था, अपने आप को बचाना, इनहेल करना, एक्सहेल करना सब आ गया था। टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और उस वक्त जो वेस्टाइजेस का मतलब होता है रिमेन। तो जो पुराना मेरा डर था, डर था, उसके जो छोटे छोटे पार्ट थे, थोड़ा थोड़ा सा डर वे भी आ रहा था मेरे दिमाग में। बट नाउ आई कुड फ्राउन। लेकिन अब मैं वो जो डर था मेरा, उसको मैं गुस्सा कर सकता था, उसको मैं बता सकता था, उसको मैं शो करता था डिसलाइक और कह सकता था मेरे डर को, से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये वेल हियर इज टू यू लुक। और फिर मैं अपने डर को हराता था, उसको डर को कहता था, क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं नहीं डरूंगा, देखो मैं कैसे स्विम करता हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। इस तरह से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया, लेकिन पूल के फियर को ओवरकम करने से उनको शांति नहीं मिली। He want to see that whether he would be able to swim in the river and lake and huge water bodies also. So he tried that also. कैसे ट्राई करते हैं देखते हैं। This went on until July. तो जुलाई तक तो उन्होंने, अप्रैल में उनके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि आप तैयार हो गए हो स्विमिंग के लिए, लेकिन जुलाई तक वो सिर्फ पूल में ही स्विम करते रहे। But I was still not satisfied. I was not sure that all terror had left. अभी भी वो श्योर नहीं थे क्या मेरे में से डर पूरा गायब हो चुका है। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं। So I went to Lake Wentworth, ये लेक का नाम है जो न्यू हैम्पशायर में है। वहाँ पे डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगीज आइलैंड। वहाँ पे ट्रिगीज आइलैंड के हैम्पशायर
वेंटवर्थ लेक में वो और प्रेगीज आइलैंड है, वहां से डॉक से उन्होंने नीचे डाइव किया, पानी में डाइव किया। एंड ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो प्रेगीज आइलैंड से वहां पे वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विम करके गए। वहां पे उन्होंने अलग अलग स्विमिंग स्टाइल्स है वो ट्राई की, जैसे कि क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया एंड इवन बैक स्ट्रोक किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। ये पूरी जब जो उन्होंने 2 माइल का स्विमिंग किया, उसमें एक बार उनका जो डर था वो आया था उनके दिमाग में। When I was in the middle of the lake, जब वो लेक के एकदम बीच में पहुंच गए थे, तब एक बार फिर से वो डर ने उन पे अटैक किया था। I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. फिर से वो जो ओल्ड सेंसेशन, जो डर होता है, इसमें आपका हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, वो एक बार फिर से अब उनके दिमाग में आया, लेकिन इस बार वो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसको कंट्रोल ना कर पाए। इट केम इन द मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर मतलब लिटिल फॉर्म। तो उन्होंने अपने डर पे हंसे, खुद अपने डर पे हंसे और डर को बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या कर सकते हो मेरा? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। वो कहते हैं उसी वक्त मैंने डर को चैलेंज किया और मेरा डर भाग गया और फिर मैंने स्विम करके 2 miles क्रॉस किया। Yet I had residual doubts. फिर भी इतना स्विम मैंने किया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को 2 माइल का स्विमिंग किया, फिर भी अभी भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे। अभी भी मुझे लगता था शायद डर वापस आ जाएगा, शायद डर वापस आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। जब भी मुझे फर्स्ट चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, टाइम मिला, तो मैं वेस्ट की तरफ गया। मैं वहां पे वेंट अप टू द Tieton टू कॉर्नार्ड मेडो। पहले मैं टिएटन से कॉनरेड मेडोज गया, कॉनरेड मेडोज से कॉनरेड क्रिक ट्रेल गया और वहां से मैं मिड ग्लेशियर गया। ग्लेशियर मतलब जो होता है कि बर्फ का पहाड़ जिसको बोलते हैं, फ्लोटिंग माउंटेन होते हैं वो जो वाटर लेक में फ्लोट करते हैं, वहां पे गया और वहां पे मैंने कैंपिंग किया। वहां पे मैं कैंप में रहा, टेंट में रहा। और कहाँ पे टेंट में रहा, हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वहाँ पे एक वार्म लेक है, वहाँ पे मैंने उसके किनारे पे मैंने टेंट में मैं रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को मैं वहाँ रहा और द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डाइव इनटू द लेक। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वहाँ पे जो लेक था वहाँ उसमें डाइव किया और स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और मैं वहाँ से स्विम करके वार्म लेक का जो दूसरा किनारा था वहाँ पे पहुंचा और किनारे से फिर से मैं वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। अब ये डॉग कॉर्पोरन एक फेमस स्विमर है, वो जिस तरह से बहुत इजीली स्विम करता था, लेंथ लगाता था एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड या एक लेक के एक किनारे से दूसरे किनारे, जिससे वो स्विम करता था, उसी तरह से मैंने भी बहुत इजीली लेक में स्विम किया। और जब मैंने पूरा किया लेंथ मेरी टू एंड फ्रो वो लेक में, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द एको। वहां पे सामने गिलबर्ट पिक है, तो उन्होंने इतने जोर से शाउट किया तो उनका जो शाउट का एको था वो गिलबर्ट पिक पे गिलबर्ट पिक ने रिटर्न किया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और एट लास्ट मुझे विश्वास हो गया कि अब किसी भी तरह का पानी का फियर मुझे नहीं होगा। मैंने सारे फियर को कॉन्कर कर लिया है, उसको मैंने अपने दिमाग से हटा दिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। वो बोलते हैं वैसे कहने जाए तो ये बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे लिए इसका बहुत डीप मीनिंग है। क्यों? क्योंकि इट हैज चेंज माई टोटल पर्सनालिटी। वंस आई वॉज fearful fellow. Once I was so afraid, I was so terrorized, and now I have got control over my terror. I have not only got control over my terror, but in fact I have conquered it. As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. और वो बोलते हैं कि मैंने जो अचीव किया है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो और फिर उसको कॉन्कर किया हो। इन डेथ देयर इज पीस। मरना आसान है, मर जाते हो तो चलो पीस ही पीस है।
There is terror only in the fear of death. हम डर किस चीज से लगता है? मरने के जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ से डर लगता है। डेथ में कोई डर नहीं है, डेथ में तो पीस ही है। तो कहते हैं कि मरना आसान है, लेकिन अपने डर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और यही बात जब एफ.डी. रूजवेल्ट, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको पता चला, तो उन्होंने क्या कहा ऑथर से? एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दैट इज, हमें डर से, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डर से डरना चाहिए और हमें उसको कॉन्कर करना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ sensation of dying, the terror that fear of it can produce, the will, that is the willingness, willpower to live somehow grew in intensity. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. वो फर्दर कहते, अब मेरे दिमाग में, मेरे दिल में किसी भी चीज का डर नहीं रहा था, चाहे वो पानी में चलना हो, माउंटेन पिक को चढ़ना हो, सब, और या फिर कोई भी तरह का डर को दिमाग से निकालना हो। आई हैव गॉट कंट्रोल ओवर माई ऑल काइंड ऑफ फियर। So class, this is detailed explanation of your chapter. I hope you have understood the chapter thoroughly. If you have any doubt, you can write down in the comment box. Class, don't forget to click on the like button, and don't forget to click on the like button and subscribe the channel. Thank you, and be safe. Take care of yourself. Thank you.